Hello students, now we are going to discuss 28th January shift 1 question paper. You already saw the analysis. If I talk about completely new question, there wasn't any in this particular shift, and about 2 questions, those were relatively lengthier, and about 15 to 16 questions are directly based on PYQs. And if I talk about rest of the questions, they were also very direct. They are just according to our practice level. Okay, let's just go ahead. First question, it is not at all new. We have come across this question. It was there in JEE Advanced. It was there in JEE Main also in many occasions. So if you have done PYQs, you must have completed this question. F of x is this. For this particular function, we discussed with theory also. I asked you to remember that if f of x is this, here a can be any positive real number. Fine. So f of x is this. For this we remember f of x plus f of 1 minus x is always 1. For this particular function I had asked you to remember, and otherwise if any other function is there and the series based question is there, then the way you should attempt the question, that also we have already discussed. Okay. So here for that particular function this holds true. If you look at the terms, we have f of 1 by 82, f of 2 by 82 and so on going up to. If you do such question once, actually you need not write anything to answer, you will be able to answer it directly. Let us consider this to be S. If you look at inputs of two equidistant functions, both side, then sum is 1. That means if this is x, then this is 1 minus x. If this is x, second from the beginning, input is x, then second from the end will carry the input to be 1 minus x, right? So you are going to simplify them by taking equidistant terms from either side. So best way is we write the same series in reverse order. This, so on. Sum है ना, तो order से तो उसे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. Order in which we add them. ठीक. So 2s is equal to f of x plus f of 1 minus x is 1. Here 1, 1, 1, 1. 1 added how many times? As many terms that we have. We have 81 terms. So 1 is added 81 times. So this is 81. S is 81 by 2. ठीक है. Next beta. It says let O be origin, the point A be this, the point B Z2 be such that this. Okay, and argument of Z2 is argument of Z1 plus pi by 6. देखो एक तरीका इसे आंसर करने का ये है कि origin this is Z1 and Z1 में एक एंगल पॉजिटिव एंगल ऐड होके Z2 का लोकेशन का पता चल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट एवर बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट आउट. दिस इज पाई बाय 6 एंड Z2 का लोकेशन यहाँ पे है और Z1 का मॉड्यूलस वैल्यू जो भी है, Z2 का मॉड्यूलस वैल्यू 1/√3 टाइम्स ऑफ इट है, मतलब कहीं यहाँ पे है. ठीक, तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका होता है यूज रोटेशन. सो दिस इज Z2, this is Z1. So can I say Z2 minus 0 upon Z1 minus 0 is ratio of their lengths, and mod of Z2 upon mod of Z1 is 1/√3 e power I pi by 6. इसे अब हम कह सकते हैं 1/√3 e power I pi by 6 into Z1. Z1 हमारे पास है √3 2√2 I. डन. आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ इट सेज. तो बच्चा ये हमारे लिए ए पॉइंट है दैट इज Z1 एंड दिस पॉइंट इज बी विच इज Z2. एरिया फाइंड करना है बच्चे. ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, तो एरिया इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स. इसका लेंथ क्या है उसके लिए लेट्स टेक मैग्नीट्यूड ऑफ इट विच इज 3 + 8 स्क्वायर रूट एंड दैट इज √11 into length of it. It is 1/√3 times of length of this, so √11 by √3. Perfect. तो एरिया आ गया 11/2√3. चेक करें. It says area of the triangle ABO is 11/√3. तो ये तो हो गया गलत. अब next, ABO is an obtuse angled isosceles triangle. Okay. तो ये लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है. It is √11 and this is √11/√3. हमें ये लेंथ फाइंड करना है.
हमारे पास Z2 भी है और Z1 भी है, आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेते हुए कर सकते हैं। और यू मे इवन यूज कोसाइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल, पूरी तरह से आपका चॉइस है। जिसे कोसाइन रूल पता है वो बेस्ट तरीका है आंसर करने का, बट यू कैन ऑलवेज यूज, क्योंकि आपके पास दोनों पॉइंट्स है तो डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कोसाइन रूल से कर लेती हूँ। सो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर minus 2 product of these two sides 11 by root 3 into cosine of the angle between them which is root 3 by 2। ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, 11 कैंसिल हो गया, ये आया। सो AB is root 11 by root 3 सेम as this। तो बच्चा ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल तो बन गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, आइसोसेलिस है ना, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। सो यस इट इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड आइसोसेलिस इज वन, ठीक। अब ये तो रूल्ड आउट हो गया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 11/2 रूट 3 आ रहा है। वैसे भी सिंगल करेक्ट है, तो जैसे ही हमें एक ऑप्शन का पता चलता है विच इज करेक्ट, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती ड्यूरिंग एग्जाम, बट नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम, यू मस्ट डू इट। ओके, नेक्स्ट बेटा, it says let the equation of circle which touches x-axis at point a comma 0, a is greater than 0, cuts off an intercept of length b on y-axis with this, if the circle lies below x-axis then the ordered pair this is equal to what। situation को देखें, वैसे बिगर ग्राफिकल एनालिसिस से भी आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर्कल के केस में आपको दो अप्रोच बताया था, वन इज प्योरली अलजेब्राइक, सेकेंड इज यूजिंग ए डायग्राम, राइट, ज्योमेट्रिकल अप्रोच। यहाँ पे अभी हम ज्योमेट्रिकली इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज a,0, इट सेज इट कट्स ऑफ ए लेंथ ऑफ b यूनिट अलॉन्ग, क्योंकि ये सर्कल बिलो लाई कर रहा है तो जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो नेगेटिव y एक्सिस पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज b यूनिट। तो कॉर्ड पे तो बच्चा हम कॉर्ड के मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिस्कशन करते हैं, करेक्ट। सो दिस इज a, है ना, ये a है, ये b/2 है बच्चा, ये रेडियस है ना, तो रेडियस इज व्हाट, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वायर रूट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं a, माइनस r, ये r है ना, एंड दैट इज माइनस ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई 4, डन। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ दिस सर्कल इक्वेशन इज दिस, देन अल्फा बीटा गामा का हमें पता चल जाएगा, देन द ऑर्डर्ड पेयर दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा अगर हम इसे प्रेजेंट करें देन व्हाट इज इट, परफेक्ट। तो बच्चा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है α/2 व्हिच इज इन दिस केस इज a, तो अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास है दैट इज 2a इज अल्फा, तो ये तो हो गया अल्फा। अब y कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं व्हिच इज -β/2 एंड व्हिच इज इन दिस केस माइनस ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई 4। सो अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो b स्क्वेयर बाई 4 इज 4a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई 4, एलसीएम ले लिया, एंड a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो 2a इज अल्फा, ये 2a का स्क्वायर है ना, तो कैन वी से b स्क्वेयर इज बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर, ठीक। इसने पूछा है b स्क्वेयर इज व्हाट, तो ये बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वैसे भी अभी हमारे पास गामा का सिंप्लीफिकेशन तो बाकी है ना, तो उस पे चलते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वायर रूट, है ना, व्हिच इज इन दिस केस g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस का स्क्वायर रूट। बच्चा स्क्वेयरिंग कर देते हैं, सो वी हैव 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 4 गामा। अब यहाँ से आंसर करते हैं, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 2a, तो ये तो हो गया कैंसिल, b स्क्वेयर इज बीटा स्क्वेयर माइनस 4 गामा। डू वी हैव इट, नाउ चेक, अल्फा कॉमा यस, ठीक है। नेक्स्ट it says let NCR minus 1 is this, let A point, B point and C point, N and R को हमें सॉल्व करना होगा। अभी vertices of a triangle, T is a parameter, if this is locus of the centroid। देखो अभी तक में जो हमें क्वेश्चंस मिल रहे थे ये अलग क्वेश्चन होता था जिसमें N and R को सॉल्व करने वाला,
ये दूसरा क्वेश्चन होता था। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को मिला दिया गया, दैट्स इट। लेकिन दोनों ही टास्क करने में बहुत सिंपल है, कंप्लीट करते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेशन से हम एन एंड आर को सॉल्व कैसे करते हैं? फॉर दैट एन सी आर माइनस 1 इज 28 एंड एन सी आर 56, एन सी आर प्लस 1 70। दो कॉन्जिक्यूटिव आर वाले टर्म को आप डिवाइड कर दें, दो अननोन, दो इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम पहले ले रहे हैं। व्हेन वी डिवाइड देम, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, वैसे तो बिगर लिखे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लिख के करने की आदत है तो कर लें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाने वाला। ये हो गया कैंसिल, यहाँ r, यहाँ n माइनस आर प्लस 1 विच इज़ 28 टू टाइम्स है ना, 1/2 क्रॉस कर दें। सो n माइनस आर प्लस 1, यहाँ से हम कह सकते हैं n इज़ 3r माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब उसी तरह से इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली लिख देती हूँ अब मैं इक्वेशन। इट विल बी r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर। आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि इन दोनों में और इसमें क्या डिफरेंस है। r इज बिंग रिप्लेस्ड बाई r प्लस 1, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ r दिख रहा है उसकी जगह पे r प्लस 1 रखते हैं, क्रिएट हो गया ये। और इन दोनों के रेशियो से 56/70, 7 हम करते हैं कैंसिल, राइट। फर्दर 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, इट इज़ 4/5 क्रॉस करते हैं। 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5, सो 4n इज इक्वल टू 9r प्लस 5। दो अननोन, दो इक्वेशन, n इज दिस, यहाँ पे हम इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वी गेट 4n, राइट। सो 12r minus 4 is 9r plus 5, so 3r is 9, r value is 3, r का वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो n is 8, n for us is 8, r for us is 3। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे में आगे के डिस्कशन के लिए हमें यहाँ n एंड r को पुट करना होगा। सो c point that we have is 3r, 3 times of r that is 9, 9 minus 8 1, देन r स्क्वेयर जो कि है 9 माइनस 8 माइनस 1, ये है c पॉइंट। एंड a पॉइंट है 4 cos t, 4 sin t, एंड b इज 2 sin माइनस 2 cos। ठीक, आगे ये कहता है लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना होता है, लेट अस कंसीडर दैट टू बी h, k। अल्फा कमा बीटा ना ले, क्योंकि अल्फा क्वेश्चन ऑलरेडी यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उसे h, k लेती हूँ, देन h इज 1 प्लस दिस बाई 3, तो 3h इज इक्वल टू 1 प्लस 4 cos 2 sin। उसी तरह से 3k इज 4 sin माइनस 2 cos। अब ध्यान से सुने, ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कस किया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, एंड साइन एंड कॉस के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए और दोनों में से किसी एक ने साइन चेंज किया। उस तरह के सिचुएशन में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी का एलिमिनेशन करना है, तो इसे आप इधर शिफ्ट कर दें और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दैट्स इट। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं। इसको आप स्क्वायर करेंगे, इसे आप स्क्वायर करेंगे, तो 4 cos का स्क्वायर, 4 sin का स्क्वायर, दोनों कंबाइन होके 16। यहाँ आएगा 4 sin स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर, दोनों कंबाइन में 4। यहाँ से 2ab, यहाँ से 2ab कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ होंगे। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। ये आ गया हमारा लोकस। अब हम h को x से रिप्लेस कर देते हैं एंड इससे k को y से। दिस इज आवर लोकस। नाउ कंपेयर एंड कंक्लूड अबाउट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज let a point be this in xy plane which is equidistant from 3 points this, and this. Let b and c be this, then among this the statements which are correct. Okay, तो सबसे पहले तो हमें a पॉइंट को सॉल्व करना होगा, और a ऐसा पॉइंट है जो xy प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब उसका z कोऑर्डिनेट तो 0 है। सो a पॉइंट इज x, y, 0, दो अननोन है हमारे पास। इसका डिस्टेंस ये तीनों पॉइंट से इक्वल ही है, तो उसके लिए इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट टू बी p, दिस इज q एंड दिस इज r, एंड वी हैव दिस पॉइंट टू बी a,
देन ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वेयर, एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, दो ही अननोन है हमारे पास, एंड उसी तरह से ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, दूसरा इक्वेशन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन क्रिएट होंगे, इजीली एक्स एंड वाई सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप 2 डायमेंशन में भी तो करते ही हैं। ठीक, तो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वेयर विच विल गिव अस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरफ जो टर्म्स हमारे पास बचेंगे, ध्यान देना, 9 प्लस 4 13 माइनस 6y, इस तरफ होंगे माइनस 4x, यहाँ है 4, ये है 9, टुगेदर 13, कैंसिल हुआ। सो वी एंडेड अप गेटिंग 3y इज इक्वल टू 2x। एक इक्वेशन देखिए कितना सिंपल सा है। अब उसी तरह से अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, ए पी स्क्वेयर तो अभी हमने लिखा ही था, तो उसी को ही रहने देना और बस दूसरी साइड को चेंज कर देना। ए आर स्क्वेयर विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गए, इधर हमें मिल रहा है ये 9 प्लस 4 13 और इधर है 1, तो माइनस 6y इज माइनस 12, वैल्यू ऑफ y स्ट्रेट अवे इज 2। यहाँ पे ये पुट करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, x इज 3, तो बचा a के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। A पॉइंट इज 3, 2, 0। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स, हमें स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करना है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत से तरह से किया जा सकता है, एंगल निकालते हुए भी किया जा सकता है, बट लेट अस डू इट बाय टेकिंग डिस्टेंसेस। तो ए बी लेंथ क्या आ जाएगा, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। यहाँ आ जाते हैं बी सी, इट इज़ 1 प्लस 16 प्लस 1 रूट 18 3 रूट 2। ए सी पे आ जाएं, इट इज़ 1 प्लस 4 प्लस 4 3। क्लियरली आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इन दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज होल्डिंग ट्रू, दैट मीन्स इट इज केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, और राइट एंगल कहाँ बना है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो इसका ऑपोजिट वाला जो एंगल है दैट इज ए राइट एंगल। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज वेरी ट्रू, एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू द हाइट विच इज 9/2, तो ये है फॉल्स, S1 इज ट्रू, सो ओनली। ठीक है, नेक्स्ट it says ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola thus. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length this and it passes through the point 1, 0, then area of ABCD is what? देखो situation कितना सिंपल है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम किस तरह का बनेगा, वेरी क्लियर, राइट। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस से क्वेश्चन ने कहा है, दैट इज अंडरस्टूड टू बी ट्रू, बट नेमिंग के लिए इन्होंने कहा है कि ये दोनों साइड ए डी एंड बी सी बने। ठीक है, ये है सिचुएशन। देन इट सेज डायगोनल ए सी, तो बच्चा ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, ये दोनों सेम होंगे, तो उसके लिए दोनों डायगोनल के लेंथ इक्वली होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। तो this is 25/4 that the question says, so it is understood this is also 25/4, and at the same time it even says कि ये फोकस से पास कर रहा है, 1, 0 से पास कर रहा है, परफेक्ट है। एंड देन एरिया ऑफ ABCD इज व्हाट, बच्चा अगर हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, वी नो हाफ सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स AD प्लस BC into the height, height मतलब ये वाला डिस्टेंस, करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, जिसको मैं D ले लेती हूँ। हमें सिर्फ इतना सही फाइंड करना है। अब प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये पॉइंट से पासिंग है, मतलब ये एक फोकल कॉर्ड है, एंड इसका लेंथ हमारे पास है, एंड बच्चा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इट इज AT प्लस 1/t का होल स्क्वायर, राइट, एंड A for this is 1 and this is 25/4, so t plus 1/t is
प्लस माइनस 5/2। अब इसमें 4 सोल्यूशंस है, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक को सॉल्व कर ले, गुड इनफ। सो t प्लस 1/t इज 5/2 में ले लेती हूँ, और यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल रहा है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक बनाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। t का वैल्यू 2 और हाफ। लेट मी कंसिडर वन वैल्यू, t इज 2। तो अगर इस पॉइंट का पैरामीटर 2 है, देन इन दैट केस जो फोकल कॉर्ड का दूसरा इनका पैरामीटर होता है दैट इज -1/2, है ना। सो पॉइंट हम लिख लेते हैं 80² 280, a इज 1, t इज 2, सो इट इज 80² 280, एंड इसका ऑपोजिट का पैरामीटर है -1/2, सो 80² 2 इंटू 1 इंटू -हाफ। डन। अब हमें इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ है। ये एक डबल ऑर्डिनेट है, तो अगर हमें ये लेंथ चाहिए, इसको डबल करना है। और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस वैल्यू ले लो, तो ये 1 यूनिट है, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, 2 यूनिट्स हो गया। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये 4 है, तो ये 4, ओवरऑल इट इज 8। और ये कितना है बच्चा, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1/4 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 माइनस 1/4 है, विच इज 15/4। अब पुट कर देते हैं हाफ 2 प्लस 8 एंड दिस इज 15/4। कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 10, ये हुआ कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 5, सो 75/4। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज TR विद द rth टर्म ऑफ एन AP पे क्वेश्चन है, और हमें पता है AP पे जब आ जाता है तो ज़्यादा कुछ हमारे पास करने के लिए होता ही नहीं है। इट सेज mth टर्म इज दिस एंड T25 इज दिस, सारा कुछ लिखते जाते हैं। सो A प्लस m-1 इंटू D इज 1/25। देन A एंड D हमारे पास दो अननोन है, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन इनफ रहेंगे, ठीक। और वहाँ से A एंड D सॉल्व होगा, यहाँ पुट करते हो हम M को सॉल्व कर पाएंगे, उसके बाद विल बी एबल टू कंप्लीट इट। तो इस इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। दिस इज A प्लस 24D इज 1/20 एंड दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज गिवन, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स मतलब S25। सो इट इज 20 को इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, सो 25/2 2A plus 24D. This is given to us as 13/20। इसे कैंसिल किया, 25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 250। फाइन। अब दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, हमें A मिल जाएगा दिस माइनस दिस। सो A इज इक्वल टू 13/250 माइनस 1/20। दोनों का LCM लेते हैं, वो है 500। तो 500 क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ 25 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2, तो 26 माइनस 25 दिस इज 1/500। A का वैल्यू ये है, अब D चाहिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 24D इज इक्वल टू 1/20, जिसे हम 25/500 लिखेंगे माइनस 1/500 विच इज़ 24/500। 24 दोनों तरफ से कर दे कैंसिल, तो D भी हमारे लिए 1/500 ही है। फाइन। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं A एंड D दोनों के वैल्यूज़ 1/500 है, तो दोनों को हमने कॉमन ले लिया एंड हियर 1 और यहाँ m-1, 1 हुआ कैंसिल, दिस इज 1/25, 25 हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 20, सो वैल्यू ऑफ m इज 20, राइट। सारा इन्फॉर्मेशन अब आ चुका है, A D M। आगे देखते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड। हमें कहा गया TR, R स्टार्टिंग फ्रॉम M गोइंग अप टू 2M मल्टीप्लाइड विथ 5M क्या आएगा। तो बच्चा सिर्फ इसे देखना, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। M का वैल्यू 20 है, ध्यान देना 40, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 माइनस 20 प्लस 1, 21 टर्म्स आ गए। सो इट इज 5 इंटू 20, सम है ना, सो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, n/2, 2A। A क्या है इस केस में, T20। अलग से फाइंड ही कर लेते हैं। T20 इज A प्लस 19D विच इज 20/500, ठीक है। तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दिस विल कम आउट टू बी 1/25, सो 2/25 2A प्लस n-1 इंटू D, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे आप खुद ही कंप्लीट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन -π/2 to
pi by 2, exponential, algebraic, trigonometric, immediate attention, shift property, a plus b minus x. The moment you put that, let me consider this to be I, so I will be a plus b minus x. So in place of x as minus x, numerator will be the same, है ना? So this is cos square x and this is 1 plus e power minus x. Simplify कर लेते हैं, 1 by e power x LCM लिया तो e power x plus 1 and here e power x. इतनी बार आप इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो कि अब तो बिगर लिखे ही करने की आदत हो गई होगी, है ना? 2i इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो कॉमन पार्ट है वो ये है, इसे हम कॉमन लेंगे तो विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस ई पावर एक्स, जो इसे कर देगा कैंसिल. सो नाउ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड 96 एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स दैट वी गेट. अब इसमें अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वी गेट बैक द सेम क्वेश्चन. और आप इवन ऑड से भी कर सकते हो, दिस इज केस ऑफ एन इवन फंक्शन. सो वी कैन राइट 2 टाइम्स हाफ द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2. ठीक, इस 96 को हम बाहर मूव कर देते हैं. सो आई इज 96 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉस स्क्वेयर है. कॉस स्क्वेयर को इंटीग्रेट करने के लिए वी राइट हाफ 1 प्लस कॉस 2x, राइट. तो ये करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे चलेंगे. सो ये 2 हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 48. नाउ इफ यू लुक एट बेटा, तो इसमें 2 पार्ट है ना एडिशन में. सो एक्स स्क्वेयर डी एक्स, उसे तो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज 48 एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू पाई बाई 2. फाइन. अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. दिस इज 48 एक्स स्क्वेयर कॉस 2x dx limit 0 to pi by 2. इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ट्वाइस दैट वी आर सपोज टू अप्लाई. जैसे भी आपको करने की आदत है आप उस तरह से कर लें. सो डिफ्रेंशिएट दिस, इंटीग्रेट दिस. दिस इज साइन 2x बाई 2. डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट cos 2x बाई 4. फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इसे करते हैं इंटीग्रेट. दैट्स इट. अब क्लोज करते हैं. दिस इज प्लस माइनस प्लस. सो एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन 2x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2. अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए ये तो है 0, तो इसे तो ख़त्म कर दें. ये आ जाएगा 2 बाई 4. सो हाफ एक्स कॉस 2x. लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई 2 के लिए, ये हमें देगा पाई बाई 2 और ये है कॉस पाई जो कि है -1. तो दिस इज माइनस पाई बाई 4 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया 0. नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हियर. सो दिस इज -1 बाई 4 साइन 2x. अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये 0 ही बन जाएगा. सो डिस्कार्ड इट. ऑल व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर इज दिस. अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड ओवरऑल 48 बाई 3 ये हुआ कैंसिल. तो 16 टाइम्स ऑफ पाई क्यूब बाई 8 एंड दिस इज 48. 4 को कर देते हैं कैंसिल तो 12 पाई ये हुआ कैंसिल. सो वी गेट 2 पाई. अगर हम कॉमन लेते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस 6. अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर करें और आंसर बताएं. पाई पाई है एंड देन पाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है एंड बीटा है -12. ठीक है, इस 2 को हमें अंदर लेके जाना है, बाहर सिर्फ पाई होना चाहिए. सो वी गेट अल्फा टू बी 2 एंड बीटा टू बी -12. इस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. द रिलेशन आर x and y are integers, x plus y is even. Okay, तो reflexive, symmetric and transitive. x comma x, x plus x, 2x is always an even integer whenever x is integer. तो ये तो reflexive हुआ. अब symmetric, अगर x comma y है मतलब x plus y अगर even है तो y plus x भी even ही होगा. So symmetric भी ये है. Transitive के लिए if x comma y and y comma z both belong to the relation, इसका मतलब x plus y even है. Let me write it as 2y1. y plus z भी even है, right. Now it says x plus z even आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए दोनों को ऐड कर देते हैं. x plus 2y plus z is equal to 2 times I1 plus I2. हमें x plus z का डिस्कशन करना है तो ये आ गया. तो बच्चा
ये एक इंटीजर है, 2 टाइम्स इवन है, ये इवन है, इवन माइनस इवन इज इवन, सो x प्लस जेड इज इवन, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, पीसेस में है और सबका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, तो इस तरह के सिचुएशन को तो आप ग्राफिकली ही हैंडल करें, बेस्ट तरीका है। अब देखें, x इज लेस देन -1, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, मतलब डाउनवर्ड मूविंग लाइन है। ठीक, -1 पे ये हमें क्या वैल्यू देती है, 3 देती है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, ओपन इंटरवल है। ठीक है, -1,3 तक आई। नेक्स्ट, मॉड x, ये v फॉर्मेशन करता है एट 0 एंड 0 पार्ट ऑफ द इंटरवल है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से। तो देख लेते हैं, -1 पे ये हमें क्या वैल्यू देता है, ये देता है 3, मतलब इसी पॉइंट से ये इस तरह से नीचे की ओर उतरेगा। ठीक है, आप विजुलाइज कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स मॉड x करेंगे तब भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, +7 करेंगे ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे, 1/3 करेंगे तो वैल्यू को हम 1/3 रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से ये नीचे की ओर जाएगा, 0 पे ये बॉटम पोजीशन पे होगा, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें आउटकम देता है टू बी 7/3। ठीक, उसके बाद v राइजिंग होगा, अपवर्ड ब्रांच होगा। 2 पे ये हमें क्या वैल्यू देता है, दिस इज 4 एंड दिस इज 11/3, सो 2 11/3 ओवर। अब इस पे आ जाते हैं, इट इज क्लियरली ए अपवर्ड पैराबोला एंड एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 4 एंड 5 पे। 2 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें तो क्या है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो यहाँ पे 2 हमने पुट किया, दिस इज -2 -3, तो ये आया 6, कैंसिल हुआ, तो ये है हमारे पास 3, 11/3, मतलब इसी पॉइंट पे ही होगा। और बच्चा इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 4 एंड 5 दोनों रूट्स के मिडल में होगा, मतलब 9/2 पे होगा, जो कि ये 4.5। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो क्लियर है कि ये नीचे की ओर जाएगा। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अब आंसर करते हैं, इट्स ए सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लैंग्वेज को देखना, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल मिनिमम कहाँ बना है, किस एक्स के लिए बना है, इट्स इज लोकल मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। और मिनिमम कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, तो ये 4 है, ये 5 है, 4 एंड 5 मतलब 9/2 पे बना। 9/2 हम x के पे यहीं पे पुट कर देते हैं, सो 9/2 इट विल गिव अस 1/2, 9/2 तो -1/2, सो इट इज -18 × 2 36 72। ठीक, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये है और ये है। क्वेश्चन सेज दोनों का सम आप बता दें क्या आएगा, सो इट इज 7/3 -11/72। इसको हम करते हैं 24 टाइम्स 24, सो नीचे हुआ 72 और इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा -11 किया तो 157/72। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ करके देखते हैं। तो लेते हैं, ये है, इनइक्वालिटी को भूल जाएं। ठीक है, इक्वालिटी पे आ जाएं, y इज इक्वल टू 2 mod x, ये हुआ +1, तो ये है 0,1। इट सेज y शुड बी लेसर देन दिस, मतलब इसके नीचे होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इससे अबव होना चाहिए। परफेक्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू x² + 1, तो y इज इक्वल टू x² पैराबोला अपवर्ड शिफ्ट हो गया और दोनों ही ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। सिमेट्रिकल है तो सिर्फ पॉजिटिव साइड में ले लो, सो x² + 1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो mod x इज x, ये हुआ कैंसिल, तो x वैल्यूज आर 0 और 2, तो 2 पे ये मीट करेंगे एंड 2 पे y कोऑर्डिनेट है 5। ठीक, और ये हुआ वो पैराबोला। अब देखें, ये पॉइंट है -2,5। इट सेज इस पैराबोला के नीचे होना चाहिए एंड एक्स एक्सिस से अबव होना चाहिए, और इसने कहा इससे भी नीचे होना चाहिए एंड एक्स वैल्यूज आर फाइनली टू बी टेकन -3 से 3 के बीच में। फाइन। अब देखें, पैराबोला के भी नीचे, ये जो मॉड वाला ग्राफ है उसके भी नीचे, दोनों के नीचे होना चाहिए और एक्स एक्सिस से अबव होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, वी आर सपोज टू फाइंड दिस एरिया।
अब क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के दोनों तरफ, तो एक तरफ का एरिया लेके हम ट्वाइस कर देंगे, राइट। एंड इफ यू लुक एट ये पार्ट ऑफ द एरिया है ना बेटा, ये तो एक ट्रेपेजियम है, तो इसके एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन पे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसका एरिया ले लेते हैं सबसे पहले। ये है 2,0, ये है 3,0 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो ग्राफ है यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो y इज़ कमिंग आउट टू बी 7, तो ये 3,7 है। हम एक तरफ का एरिया लेंगे और ट्वाइस करेंगे माइंडेड, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ गया, हाफ सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स, सो 7 + 5 12 इंटू दिस विच इज़ 1, तो ये आ गया 6, ठीक। तो इसकी जगह पे लेट अस राइट 6 प्लस इस एरिया के लिए तो हमें इंटीग्रेट ही करना है इससे, है ना। सो x² + 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 कंप्लीट कर लेते हैं। x³/3 तो ये आ जाएगा 8/3 + 2 और +6 है हमारे पास, एंड ओवरऑल 2 टाइम्स ऑफ इट, तो ये आया 32/3, 2 टाइम्स हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज y इज f of x, इट satisfies this। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने में तो हम बहुत कंफर्टेबल हो ही चुके हैं। यहाँ f है इंटीग्रेशन के अंदर, इधर बाहर है, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनेगा, उसका वैल्यू यहाँ से आएगा, देन विल सॉल्व फॉर इट, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करें x f of x इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, ये आ गया। अब हम f को y लेना ही प्रेफर करेंगे और ये दोनों लाइक टर्म है, तो हम एक तरफ इन्हें कर देते हैं एंड एक x को आप कैंसिल भी करते हैं। सो वी हैव -y इज इक्वल टू x dy/dx। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, आप उससे कर लें, या तो आप इसे एग्जैक्ट फॉर्म से भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये -y dx है, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x dy + y dx है, दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ x y, राइट। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स वाई इज ए कांस्टेंट, राइट। जैसे भी करना चाहे वेरिएबल को सेपरेट करते हुए भी कर सकते हैं। अब सी को सॉल्व करने के लिए x इज 2 देन y इज 3, 6 आ गया, c का वैल्यू आ गया 6, ये है। f ऑफ 6 इज व्हाट, तो x की जगह पे 6 पुट करें, y कैलकुलेट कर लें, फाइन। नेक्स्ट इट सेज द नंबर ऑफ डिफरेंट 5-digit numbers greater than 50,000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that sum of their first and last digits should not be more than 8, मतलब 8 हो सकता है, 8 से स्मॉलर होना चाहिए, 8 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओके। अगर हम इससे लार्जर चाहते हैं, इट इज़ ए 5-digit नंबर, तो यूनिट प्लेस की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 5, 6, 7, हमारे पास यहीं तक के डिजिट है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ये है। और ये कहता है कि ये और लास्ट डिजिट का जो सम है इट शुड नॉट क्रॉस 8, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या हम इस जगह पे 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, उसको क्रॉस हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए भी केस बना लेते हैं पहले, अगर ये 6 है तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हम नहीं ले सकते, 8 को हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसके लिए 0, 1, परफेक्ट। अब ये जो मिडिल वाले डिजिट्स है ना, they can be anything, mind it here, they can be anything, but important thing, अगर हम 5 से स्टार्टिंग की बात करते हैं और यहाँ पे 0 आ जाता है और बीच में भी हम 0 डाल देते हैं, तो उस केस में वो इसे एक्सीड नहीं करेगा। तो इस पूरे सिचुएशन में एक ऐसा नंबर है जो कि 50,000 ही है जिसे हम काउंट कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सभी के सभी नंबर्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो उस एक नंबर को जरूर सब्ट्रैक्ट कर दें एंड में, ठीक है। तो कितने इस तरह के नंबर सब हम क्रिएट कर सकते हैं, देखो हमारे पास जो डिजिट्स इन चॉइस है वो 8 है, तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आ जाएगा 1, 8³ इंटू 4, बट इसी केस में से ही वो एक्स्ट्रा नंबर जो हमें नहीं लेना है उसे आप रिमूव कर दें। सेकेंड केस पे आ जाएं, 8³ इंटू 3, नेक्स्ट 8³ इंटू 2, राइट, सम देम अप, दिस इज 9 टाइम्स ऑफ 8³ माइनस 1, कैलकुलेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है, नया तो है नहीं। इट सेज सीक्वेंस सच दैट दिस इज दिस,
दो तरह से हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता रही हूँ, फ्यूचर में आपको ध्यान में रखना है। वन वे इज, यहाँ पे देखना 2an+2, यहाँ 2 टाइम्स अगर मैं इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो यहाँ रह जाएगा 3 टाइम्स। परफेक्ट। अब क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करती हूँ तो ये मुझे क्या देगा बेटा? दिस इज a2 माइनस a1 अपॉन a1, इट इज 3/2, करेक्ट। इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, आप देखें क्या है, 1/2 माइनस 0, दिस इज 1/2। तो इसे हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज 1/2। तो a2 माइनस a1 इज दिस। उसी तरह से अगर मैं n की जगह पे 1 इसमें पुट करती हूँ तो यहाँ आएगा a2 माइनस a1, जिसका वैल्यू ये है, इसे मैं इधर क्रॉस करूँगी तो मुझे a3 माइनस a2 का पता चलता है, दैट इज 3/2 इंटू दिस, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू हाफ। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो टर्म्स हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये जो पैटर्न है, दे आर इन जीपी में है। तो बाय दैट अगर मुझे nth टर्म का पता लगाना हो इस पैटर्न में, आप देखो जो nth टर्म होगा मैं पहला भी लिख देती हूँ, a1 माइनस a0, दैट इज हाफ, ठीक। हाफ, देन हाफ इंटू 3/2 जीपी है। तो अगर मैं इसका nth टर्म लिखूँ तो a1 से आगे बढ़े nth प्लेस पे तो an-1, वो इस जीपी का nth टर्म, व्हाट इज इट, a 3/2, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बट, और हमें चाहिए a के, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को, कैंसल्ड, ये सभी कैंसिल हो गए, an माइनस a0, ये तो 0 है, इज इक्वल टू इस जीपी का n टर्म्स का सम विच इज a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 विच इज 1/2, वो इसे कैंसिल कर दिया। an का हमें पता चल गया डायरेक्टली, राइट। an का पता चलते ही आप यहाँ पे पुट करेंगे और समेशन कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 3/2 माइनस 1, तो सेपरेट करते हैं। k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100, तो इसे तो हम डायरेक्टली 100 लिख लेंगे, और इसका फर्स्ट टर्म आएगा 3/2, कॉमन रेशियो 3/2, जीपी तो है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 माइनस 1 अपॉन हाफ, तो ये इसे करता है कैंसिल, और यहाँ पे -100 भी है साथ में। अब ऑप्शंस देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस आंसर को इन टर्म्स ऑफ a प्रेजेंट करना है, और अभी अभी हमने देखा था an केम आउट टू बी 3/2 पावर n माइनस 1, है ना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं a100, सो 3a100 माइनस 100 इज आवर आंसर, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखेंगे। हम सब ने न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है उस पर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊँ यहाँ पे, कैन आई से 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, वेयर an कैन बी k1 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर n, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इट, k2 टाइम्स ऑफ बीटा पावर n, वेयर k1 एंड k2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके हेल्प से अगर हम आंसर करना चाहें तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हमें क्वेश्चन ने a0 दिया हुआ है और अल्फा एंड बीटा तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बताओ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है, 0 है, मतलब 1 इज अ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो 3/2, तो 3/2 इज द अदर रूट। अब फैक्टराइज करके डायरेक्ट मेथड से जैसे करना चाहे करें, रूट्स ये आ गए, ठीक है, 1 एंड 3/2। अब हमारे पास k1 एंड k2 को सॉल्व करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन है, तो a0 इज अल्फा इज 1, ये लिख ही लेते हैं इसी तरह से, 1 पावर n इज 1 एंड k2 3/2 पावर n, ठीक। तो ये हमें देगा आज k1 प्लस k2 विच इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें दे रहा है k1 प्लस k2 3/2, k1 प्लस k2 का वैल्यू 0 है, तो k1 को हम लिख सकते हैं माइनस k2, तो ये देगा k2/2, तो k2 इज कमिंग आउट टू बी 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो k1 आ गया टू बी, तो यहाँ से हमें पता चल गया जो an है ना, दैट इज k1 इज -1 एंड k2 इज 1, सो 3/2 पावर n -1, वही चीज़ हमें वहाँ भी मिला था। इसके आगे का काम तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज
two numbers k1 and k2 are randomly chosen from set of natural numbers, then probability that value of I iota power k1 plus iota power k2 is non-zero. तो बच्चा अगर हम iota का कोई भी natural power लेते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है. iota का पावर अगर आप 4 का मल्टीपल लेते हैं, अगर 4k प्लस 1 टाइप का लेते हैं, 4k प्लस 2 टाइप का लेते हैं एंड 4k प्लस 3, एनी नेचुरल नंबर दैट यू टॉक अबाउट इट विल बी आइदर ऑफ दिस काइंड. ठीक, और हमें चाहिए कौन से दो को हम ऐड करें ताकि वैल्यू हमें नॉन जीरो मिले. तो देखें, तो यहाँ 1 के साथ ये फेवरेबल है, ये नॉन फेवरेबल, ये फेवरेबल. तो बेटर रहेगा जो नॉन फेवरेबल केसेस है उन्हें हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो अगर हम 4k प्लस 1 4k प्लस 2 इस तरह से कैटेगराइज करते हुए करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब इनफाइनाइट सेट जिसमें आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे तो नहीं कर पाएंगे, क्लासिकल डेफिनेशन वहाँ एप्लीकेबल नहीं है. तो यहाँ पे हम डेंसिटी के ग्राउंड पे ही वर्क करते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है. तो उसी तरह से बताएं, अगर हम एक 4 का ग्रुप कंसिडर करते हैं तो उसमें k1 कैन बी डिसाइडेड इन 4 वेज, k2 कैन बी डिसाइडेड इन 4 वेज. उसमें से जो नॉन फेवरेबल है वो कौन कौन से हैं. अगर मैं k1 को 1 लेती हूँ तो ये -1 नॉन फेवरेबल है. अगर मैं k1 को ये लेती हूँ तो k2 ये नॉन फेवरेबल. 2 केसेस. उसी तरह से दिस विद दिस, दिस विद दिस. तो टोटल हमारे पास कितने केसेस आए, 4 केसेस विच आर नॉन फेवरेबल आउट ऑफ 16. तो फेवरेबल कितने हुए, 12. सिंप्लीफाई कर लें. ठीक है, नेक्स्ट बचा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कॉस है, साइन इनवर्स तो हम हमेशा टैन इनवर्स में कन्वर्ट करके डील करना प्रीफर करते हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ 3/4 है ना. P एंड H, B कैलकुलेट कर लें. उसी तरह से P है, H है, तो दिस विल बी टैन इनवर्स ऑफ 5/, एंड दिस इज टैन इनवर्स ऑफ ये H. हमें B चाहिए, तो 65 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर रूट. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी के हेल्प से करें, बेटर रहेगा. सो दिस इज 98 एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 32. तो ये है 49 इंटू 2, ये है 16 इंटू 2. तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 49 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2. तो बच्चा ये है 56. डन. अब आंसर करते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12. tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x2, वेयर x1 इंटू x2 अगर हम देखें दैट इज लेसर देन 1. तो इस केस में ये दोनों कंबाइन होके हमें देंगे tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस 15/48. 3 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो वी गेट 5 एंड दिस इज 16. ये 11/16 हमें देता है और यहाँ पे आ जाते हैं. इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट वी गेट इज 14/12. करेक्ट. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 16/11, ये 4 को हमने किया कैंसिल. फर्दर और सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप तो यहाँ पे है नहीं, तो ये है 56 और नीचे है 33. अब आप देखें, वी हैव tan इनवर्स ऑफ 56/33 एंड देन tan इनवर्स ऑफ 33/56. इसे हम लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 56/33 दोनों मिलके. और वैसे भी डायरेक्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, वेयर x इज पॉजिटिव दैट गिव्स अस π/2. अगर x नेगेटिव होता तो माइनस π/2 आया होता. एंड इन एनी केस cos ऑफ 90 डिग्री या cos ऑफ माइनस 90 डिग्री दैट गिव्स अस. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज फंक्शन रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स ये क्वाड्रेटिक है, सैटिस्फाइंग दिस देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट. देखो आपके पास दो तरीके हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक का डिस्कशन कर सकते हैं वन वे. सेकेंड वे इज ये एफ ऑफ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैलकुलेट करके दोनों साइड इक्वेट करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं. कंप्लीटली योर चॉइस. आई प्रीफर टू डू इट बाई फंक्शनल इक्वेशन. ठीक, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन इन दैट केस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है. अब एडिशन में है तो वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे. वाई आ 0 ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, उसका नाम हम दे देते हैं सी. ठीक है, ये आ गया एफ डैश एक्स. सो एफ ऑफ एक्स वाज सी एक्स 2/7 x² by 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट
के नाम दे देते हैं, ये हो गया सिंप्लीफाई। तो बच्चा एफ ऑफ एक्स जो कुछ भी आएगा इस तरह का आएगा, राइट। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये गिवन है तो हमें ए का पता चल जाएगा यहाँ से। तो ए फॉर अस इज 2 + 3a इज इक्वल टू -1/7, 3a इज -1/7 -2, तो -15/7। बच्चा ए का वैल्यू हमें मिल गया -5/7। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि वो भी इन टर्म्स ऑफ ए ही है। यहाँ पुट करते हैं -5/7 + 2, तो 14 - 5 9, 9/7 है ये, तो 9/7 अपॉन a -1 विच इज़ -12/7, ये हुआ कैंसिल, वी गेट -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं दिस इज -3/4 टाइम्स ऑफ x। अब बस हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए जो हमारे पास आज इट इज़ तो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़, जब कभी भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन गिवन हो ना बेटा, तो आप इनिशियल वैल्यू का पता लगा सकते हैं। एडिशन में तो एक्स एंड वाई दोनों की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देते तो हमें कुछ मिलेगा। देखो f ऑफ 0 2f ऑफ 0 1 और ये आ गया 0, एक्स एंड वाई दोनों 0 लिया है। ठीक है, तो f ऑफ 0 एक हो जाएगा कैंसिल, तो f ऑफ 0 इज़ -1। तो उसके हेल्प से आप देखो f ऑफ 0 इज़ -1, तो 0 0 k इज़ -1, तो पूरा फंक्शन अब पूरी तरह से हमारे सामने है। नाउ इट सेज इवैल्यूएट दिस, मॉड लेना है, एंड जो x की वैल्यू जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब जब हम इसका मॉड लेंगे x पॉजिटिव है तो माइनस साइन को आप डिस्कार्ड कर दें और स्ट्रेट अवे इसे लिख दें आज i²/7, सेपरेट भी कर देते हैं साथ में, एंड देन 3/4 i समेशन, एंड देन 1 समेशन, कितनी बार 5 टाइम्स, एंड पूरे को 28 टाइम्स भी कर देंगे। तो ये हमें देगा n × n + 1 × 2n + 1/6, राइट। तो ये आया 55 एंड 7 है 55/7। यहाँ पे n × n + 1/2, ये हुआ कैंसिल, तो 15 45 45/4, और ये है 5 28 से मल्टीप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे, बेटर रहेगा। तो 7 हुआ कैंसिल, तो 4, तो दिस इज 220। यहाँ ये कैंसिल हुआ तो 7 दैट वी आर लेफ्ट विथ, वो आ जाएगा 315, एंड 28 × 5 करेंगे तो 140 है ना, तो 60 70 75, एंड दिस इज 3 2, सो दिस इज 675। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, it says 3 defective oranges are accidentally mixed with 7 good ones, and on looking at them it is not possible to differentiate between them. 2 oranges are drawn at random from the lot. If x denote number of defective oranges, then variance. बच्चा x से number of defective oranges which are drawn and 2 oranges are drawn, and हमारे पास total 3 defectives आते हैं। तो x की possibilities क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 और 2, क्योंकि 2 ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, 0 डिफेक्टिव हमने 2 ड्रॉ किया है, और हमारे पास टोटल जो डिफेक्टिव है दे आर 3, एंड नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड वंस दे आर 7। ठीक है, 0 डिफेक्टिव मतलब दोनों ही जो ऑरेंज हमने ड्रॉ किया दे आर आउट ऑफ दिस 7, सो इट इज 7c2 अपॉन 10c2। देन इट सेज 1 डिफेक्टिव, देन द सेकेंड वन इज नॉन डिफेक्टिव, सो 3c1 × 7c1 अपॉन 10c2। Then both are defective, so 3c2 which is 3 10c2। पहले इन प्रोबेबिलिटीज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7c2 is 7 × 6/2, ये है 10 × 9/2, 2 कैंसिल हो गया, ये 6 यहाँ से हम करते हैं कैंसिल 2 को और यहाँ से 3 को, तो 7/15, दिस इज 7/15। नेक्स्ट 3 × 7, नीचे है 10 × 9/2 which is 45, ये हुआ कैंसिल, तो 7/15। अब इस पे आ जाएं, 3/45 which is 1/15। और जब भी आप ऐसा काम करते हैं ना, चेक जरूर कर लें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 आना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हुआ है, उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, वेरिएंस फाइंड करना है तो xi² pi चाहिए और xi pi भी हमें चाहिए, दोनों चीज़ें ले लेते हैं।
here xi square pi that is 0, xi pi 0. इसको स्क्वेयर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ही केस में यहाँ पे स्क्वेयर दिस, सो 4/15 और यहाँ पे ये है 2/15. सो xi pi समेशन हमारे पास है 9/15 और इनका समेशन है दैट इज 11/15. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3, 5. तो वेरिएंस होता है xi स्क्वेयर pi समेशन माइनस xi pi समेशन का स्क्वायर, है ना. सो 11/15 माइनस 9/25. तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले वी गेट 75, है ना. तो ये हुआ 55 और ये है 27. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इट इज़ 28/75. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑल द रूट्स इट सेज, और मॉड है, पार्शियली है, तो दो केसेस. इफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इन दैट केस मॉड 2x माइनस 3 को हम 2x माइनस 3 लिखेंगे. ये आ गया. तो यहाँ से हमें जो रूट्स मिलते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो -2 प्लस माइनस 4√2/2 -1 प्लस माइनस 2√2. इसमें एक वैल्यू तो नेगेटिव है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ही नहीं. दूसरा है 2√2 माइनस 1. √2 अप्रॉक्सीमेटली 1.4 अगर लेते हैं तो 2.8 माइनस 1 1.8. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 होना चाहिए तो सेटिस्फाइंग है. मतलब यहाँ से हमें एक ही रूट मिला है. अब सेकेंड केस पे आ जाते हैं. व्हेन x इज लेस देन 3/2 देन x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4, x माइनस b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो 1 प्लस माइनस √2. इसमें जो 1 प्लस √2 है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता तो उसे तो आप रिजेक्ट करेंगे. अब रह जाता है 1 माइनस √2. अब क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, तो इसे स्क्वेयर कर देते हैं. 8 प्लस 1 9 माइनस 4√2. इसे स्क्वेयर करते हैं 3 माइनस 2√2. तो 12 माइनस 6√2. चेक कर लें, अगर हम 6 को कॉमन लेते हैं देन वी गेट 2 माइनस √2. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस इज दिस, बहुत बार कर चुके हैं. तो इमेज लेने के लिए या तो आप डायरेक्टली इमेज तक जा सकते हैं या तो आप फुट कैलकुलेट करते हो फिर इमेज तक चले जाएं. सो दिस इज 4 4 3. डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ है बट विल डू इट इन दोज 2 स्टेप्स प्रोसेस. ठीक है. तो इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं दैट इज 2k प्लस 1 k प्लस 2 3k प्लस 1. ठीक. और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है 2 1 3. दे आर द कंपोनेंट्स. फाइन. अब इसकी जॉइनिंग जो वेक्टर क्रिएट होगी उसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस शुड कम आउट टू बी 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. फुट ले रहे हैं ना. तो ये पॉइंट Q, ये P, फिर Q टू बी द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, हम R को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. कंप्लीट करते हैं. ये 2k माइनस 3, दिस माइनस दिस k माइनस 2, दिस माइनस दिस दैट इज 3k माइनस 2. डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ ले रहे हैं. सो इट इज 4k माइनस 6 k माइनस 2 9k माइनस 6. वी वांट इट टू बी 0. ठीक है. तो ये है 14k इज इक्वल टू 14. k का वैल्यू हमें मिल गया एज 1. k की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं. ये हमारे लिए पॉइंट. ठीक है. सो k एज 1 व्हाट वी गेट इज 3 एंड 4. और इन दोनों का मिड पॉइंट ये है. तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज दिस प्लस दिस. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस. सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस. ठीक. ये आ गया. क्वेश्चन कह रहा है सम, तो इट इज 9. ठीक. नेक्स्ट, इट सेज E1 ellipse EI are constructed such that their centers and eccentricities are same as that of E1 and the length of minor axis of EI is length of major axis for EI plus 1. सिचुएशन आप समझना. यहाँ पे हम लिखते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. ये है 3, ये है 2. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है जो सेकेंड एलिप्स होगा ये E1 है. सेकेंड
सेकंड के लिए जो माइनर एक्सिस का लेंथ है मतलब 4, इसका 2a होगा तो a का वैल्यू ये होगा, है ना, ये सेम वैल्यू एज इट इज, फाइन। एंड एसेंट्रिसिटी सेम है, तो एसेंट्रिसिटी सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट में से। सो ई स्क्वेयर इज 5/9 एंड वी नो बी स्क्वेयर इज a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हर एक एलिप्स फॉलो करेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट एलिप्स के केस में भी जो b है 2, दैट इज फॉलोइंग द रिलेशन 2 इंटू 3/3, ठीक। तो एग्जैक्टली उसी रिलेशन के हेल्प से विल बी एबल टू फाइंड ऑल दिस। तो आगे बढ़ते हैं, इसका b क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 2 विच इज 2/3 ऐसे, ठीक। अब E3 पे आ जाएं, ये सेम होगा तो ये है 4/3 एंड इसका 2/3, सो इट विल बी 2/3 इंटू 2। पैटर्न अब क्लियर हो रहा है। और हमें एरियाज कंसिडर करना है, तो इस केस में एरिया क्या है पाई ए इंटू बी, यहाँ एरिया क्या है पाई ए इंटू बी, जो कि हो जाएगा 8π/3, करेक्ट। अब एक और चीज़ देखो बेटा, क्या ये जीपी में है 2/3, इन दोनों का रेशियो 2/3, क्या ये जीपी में है, यस। इसका मतलब जो एरिया आएगा पाई ए बी, ए जीपी बना रहे हैं विथ अ कॉमन रेशियो ऑफ 2/3 एंड बी भी जीपी बना रहे हैं विथ अ कॉमन रेशियो ऑफ 2/3, तो ओवरऑल जो पाई ए बी होगा क्या वो भी एक जीपी होगा विथ अ कॉमन रेशियो ऑफ 2/3 इंटू 2/3, 4/9। खुद के लिए चेक कर लो, दिस अपॉन दिस अगर आप करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो पाई ए इंटू बी, ठीक है, तो 2 क्यूब 2 स्क्वेयर 2 पावर 5 π/3 क्यूब, इसी तरह से चेक कर लो, यहाँ 2 क्यूब बाई 3 है, यहाँ 2 पावर 5 है ना जीपी में, तो इनफाइनाइट जीपी का सम हमें चाहिए। सो 5/π ए बाई 1 माइनस आर, आर क्या है बेटा 4/9, तो ये हुआ 5/9, 5 हुआ कैंसिल, पाई हुआ कैंसिल, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट, और इस तरह के क्वेश्चन नए नहीं है, एलिप्स पे जरूर आपको नया लग रहा होगा बट वी हैव ऑलरेडी डन देम इन टर्म्स ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट, M डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस, S ये है और इन्हीं को एलिमेंट्स की तरह यूज करना है हमें और ये काउंट करना है, ठीक है, ये हमें काउंट करके अल्फा यहाँ से फाइंड करना है। तो उसके लिए यूनियन की कार्डिनलिटी अगर फाइंड करना है तो वी रिक्वायर ऑल दिस। तो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है लेट अस जस्ट वर्क ऑन दोज। S2 इंटरसेक्शन S3, S3 इंटरसेक्शन S1 प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3, ठीक, 1 by 1। फर्स्ट n ऑफ S1, ये क्या है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस यूजिंग दिस एज एलिमेंट्स हम कितना बना सकते हैं 3x3 का, डायरेक्ट हमने ये सब स्टडी किया हुआ है। जो डायगोनल प्लेसेस है दे कैन बी एनीथिंग, एक तरफ का ट्राइंगल जो होगा वही इधर कॉपी हो जाएगा, तो आपका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर बेस्ट होना चाहिए, 3 एलिमेंट 6 एलिमेंट्स, और वो 6 एलिमेंट्स इनमें से कोई भी हो सकता है। हाउ मेनी दैट वी हैव इन चॉइस 1 2 3 4 5, तो 5 पावर 6। सेकेंड, स्क्यू सिमेट्रिक कितने होंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल प्लेसेस ऑल हैव टू बी 0, और 0 हमारे पास है ही नहीं, तो इस तरह की मैट्रिक्स तो हम इन एलिमेंट्स की हेल्प से क्रिएट कर ही नहीं सकते। अब बेटा S3 की बात करते हैं जिसमें सम ऑफ डायगोनल प्लेसेस हमें 0 चाहिए, इन एलिमेंट्स को यूज करना है, तो बिगिन करो। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, -3 के साथ आप 2 and 1 ले सकते हैं, 3 हमारे पास है नहीं, 2 के साथ आप -1 and -1 ले सकते हैं, -2 के साथ आप 1 and 1 ले सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी तो वर्क नहीं करेगा। अगर आप 2 को 2 बार लेने का सोचेंगे तो आपको -4 चाहिए, वो है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस को नोट डाउन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 डायगोनल प्लेसेस, दिस 3 एलिमेंट्स, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 ways, 3 फैक्टोरियल वेज, है ना। एंड रिमेनिंग प्लेसेस में कुछ भी आ सकते हैं, तो 6 प्लेसेस आ गया। उसी तरह से ये 3 प्लेसेस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 वेज में, और ये 3 वेज में, तो ओवरऑल ये आ गया 12 इंटू 5 पावर 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बचा, यही एक नल सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, उसी तरह से S2 के साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो नल सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब हमें सिमेट्रिक भी चाहिए और इसे सेटिस्फाइंग भी चाहिए,
और डायगोनल प्लेसेस पे हमारे पास यही चॉइसेस है, ठीक। एंड एक तरफ का ट्राइंगल हमें डिसाइड करना है, वो कॉपी हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि सिमेट्रिक भी हमें बनाना है, ठीक है। तो कितने ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप देखें, दे कैन बी अरेंज्ड इन द डायगोनल 3 प्लेसेस इन 6 वेज, ये 3 और ये 3। तो टोटल हमारे पास जो डायगोनल बनाने के तरीके हैं वो 12 है। एंड ये प्लेसेस यहाँ पे कैन बी डिसाइडेड इन 5 क्यूब वेज, दैट्स इट, क्योंकि यही इधर कॉपी हो जाएगा, परफेक्ट। अब यहाँ पे आ जाता है तीनों का इंटरसेक्शन, ये नल सेट है तो ये वैल्यू 0 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 125 टाइम्स ऑफ अल्फा है, तो 125 से आप डिवाइड कर दे, अल्फा को फाइंड कर ले। दिस इज 5 क्यूब, 125 मतलब 5 क्यूब, हमने डिवाइड किया, सो वी गेट 13 इंटू 125 माइनस 12, तो दैट्स इट, कैलकुलेट कर लें, ठीक। नेक्स्ट वेक्टर, it says A is this, B is this, D is this. C is a vector such that A dot C is this, okay. Angle between this is this. ये क्या आएगा, बस इंफॉर्मेशन जो गिवन है प्रोसीड कर जाए उनको लेके। D हम फ्रेम कर लेते हैं, I J K 1 1 1 2 2 1, so this is 1 minus 2 minus J 1 minus 2 K 0, ठीक। तो ये है माइनस आई प्लस जे, डी वेक्टर हमें मिल गया, दैट इज माइनस आई प्लस जे। आगे बढ़े, सी इज ए वेक्टर सच दैट दिस इज दिस, और यहाँ पे सी एंड ए में ही है, तो इसे आप एक्सपांड कर दे, तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 4 ए डॉट सी सी ही है, एंड देन 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इट इज 12, 12 माइनस 8 इट इज 4। यहाँ से हम c को सॉल्व कर लेते हैं, c इज कमिंग आउट टू बी 2, ठीक। c 2 है तो a डॉट सी भी 2 ही है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ठीक। कि जो हमें फाइंड करना है वो क्या चीज़ है वो देख लो, ये है 100 9 b डॉट सी का स्क्वायर 60 b डॉट सी, और ये है d क्रॉस c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमारे पास d एंड c के बीच का एंगल गिवन है, तो हम इसे d स्क्वायर, और d स्क्वायर हमारे पास है दैट इज 2, c स्क्वायर हमने अभी सॉल्व किया, एंड साइन रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उसको हमें स्क्वायर करना है, ठीक। अब बस हमें b डॉट सी की ज़रूरत है, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा कोई हम कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाएंगे, रादर अगर मैं c वेक्टर को कंपोनेंट c1 c2 c3 लेट कर लेती हूँ, तो 3 अननोन है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से विल बी एबल टू सॉल्व फॉर। देखते हैं, सबसे पहले a डॉट सी पे चलते हैं। a डॉट सी है c1 प्लस c2 प्लस c3, व्हिच इट सेज इज मैग्नीट्यूड ऑफ c मतलब 2, एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। सेकेंड, इट सेज d एंड c के बीच में जो एंगल है वो π/4 है, तो d एंड c के बीच का एंगल दैट मीन्स d डॉट सी, d हमारे पास यहाँ पे है, और अगर हम c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर जो कि है √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिला -c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड, ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4। 3 अननोन है बच्चा, 3 इक्वेशन है हमारे पास, कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं C2 को लिखना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ 1 अननोन, एंड यहाँ से C3 को हम लिखेंगे 2 माइनस C1 माइनस C2, और C2 की जगह पे 2 प्लस C1 हम पुट कर देते हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी -2 C1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज C1 स्क्वेयर प्लस 2 प्लस C1 का स्क्वेयर, एंड दिस इज 4 C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 C1 स्क्वेयर 4 C1 एंड 4 हो गया कैंसिल, तो C1 का एक पॉसिबिलिटी 0 है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी -2/3 है, ठीक है। इसका मतलब C वेक्टर के लिए 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लिख के देखते हैं। अगर C1 का वैल्यू 0 है तो C वेक्टर इज 0 I कैप, C2 इज 2 एंड C3 दैट वी हैव इज हियर, है ना, दैट इज 0। तो ये हुआ एक पॉसिबिलिटी, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज टेकिंग दिस, सो इट इज -2/3 I कैप, एंड C2 इज 2 -2/3,
तो ये हुआ 4/3 जे कैप, एंड ये है -2 टाइम्स ऑफ, तो 4/3 के कैप। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है तो दो आंसर तो यहाँ पे क्रिएट होंगे ही। कंप्लीट करते हैं, बी डॉट सी पे चलें पहले। सो हियर बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस। तो फर्स्ट से हमें बी डॉट सी का पॉसिबिलिटी मिल पा रहा है टू बी 4, एंड सेकेंड की हेल्प से हमें मिल रहा है -4/3, 8/3 प्लस 4/3। ठीक, ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट 8/3। तो दोनों को पुट करके बस हमें आंसर ही तो निकालना है, तो यहाँ पे हम पुट क्यों करें दो दो जगह पे, यहीं पे करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है विच इज़ 4, बस इसी को हमें इवेलुएट करना है। सो 10, ये अगर 4 है, दिस इज 12, सो दिस कम्स आउट टू बी 2, 2 प्लस 4, वन आंसर इज 6। द अदर वन ये है 8/3, तो 8, ये हुआ 2, एंड दिस इज 4, राइट। सो आंसर इज 6। हमें बी डॉट सी के दो वैल्यू जरूर मिले थे, लेकिन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज अल्फा इज 1 प्लस दिस, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब हमें अल्फा को ही सॉल्व करना है। पैटर्न देख लेते हैं। 1 आर अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो गया एज 1, एंड दिस इज 12 सी, आर एज 1। फिर आर एज 2 अगर हम लेते हैं तो दिस इज -3, 12 सी 3। ओके, इंटरेस्टिंग। सो नाउ इट इज 3 स्क्वेयर 12 सी 5, एंड इट गोज अप टू आर। जब हम 6 लेंगे ना तो दिस इज -3⁵ एंड 12 सी 11। नया नहीं है, हम थ्योरी के साथ डिस्कस करते ही हैं इन्हें। करने का तरीका देखो, ऑड आर आर देयर, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, तो स्क्वेयर रूट्स ऑफ -1 तो यूज होगा ही, दैट मीन्स अयोटा एंड माइनस अयोटा यूज होगा। अब कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो पावर तो हमें आर के फॉर्म में ही चाहिए। ये 3 है, यहाँ पे 3 है, ये 5 है, तो यहाँ 3 स्क्वेयर है। तो अगर, क्योंकि ये ऑड है ना, तो ऑड पावर के साथ होना चाहिए, तो एक काम करेंगे, ये √3 का स्क्वायर है, ये √3 पावर 4 है, तो एक √3 मिसिंग है, तो हम दोनों तरफ √3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं √3 का स्क्वायर, ये है √3 का क्यूब, तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया, √3 पावर 11। अब इसे हैंडल करने के लिए x है √3 एंड प्लस माइनस अयोटा का तो यूज हमें लेना ही है, तो वी आर गोइंग टू टेक 1 प्लस एक्स होल पावर, n का वैल्यू क्या है 12। इसके एक्सपांशन में x की जगह पे √3 अयोटा एंड -√3 अयोटा लेना है, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग बोथ यू कैन जस्ट टेक 1 √3 अयोटा लें, और उसके लिए ये चेक कर लो कि ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, और उसी को लेफ्ट हैंड साइड से इवैल्यूएट कर लो। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। ये हमें देगा x एज √3 अयोटा हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो 12c 0, 12c 1x, 12c 2x square like this. So 1 plus √3 iota whole power 12 is 12c 0, then 12c 1 √3 iota, and then √3 iota का square तो minus 12c 2 √3 square. Next term will be minus 12c 3 √3 cube iota, right? तो अब आप पैटर्न को नोट करें, हमें जिन टर्म्स की ज़रूरत है वो ये वाले टर्म्स है, राइट, जो कि राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो ये वाला है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। उसके लिए दिस एंड दिस आर इक्वल, तो इसका हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। ठीक, एंड जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और फिर अल्फा वी विल इवैल्यूएट। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज 1 प्लस √3 अयोटा होल पावर 12 का इमेजिनरी पार्ट। बच्चा यूलर फॉर्म में चलते हैं। दिस इज मॉड्यूलस वैल्यू आज 2 e पावर i π/3 होल पावर 12, सो इट इज 2 पावर 12 e पावर i 4π, ये तो है 1, तो ये प्योरली रियल है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो है 0। इसका मतलब ये हो गया 0, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 1, तो ये है 1। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो 12 - 3 + 1 mod अपॉन 1 + 3 स्क्वायर रूट विच इज़ 2, ये हुआ 10/2 एंड दैट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट
last question. It says f of x is 3x less than 0, minimum of these two and 5 when x is greater than 2. हमें चाहिए f डिसकॉन्टिन्यूस कितने जगह पे है, नॉन डिफरेंशिएबल कितने जगह पे है. ठीक है, तो इन दोनों में हमें मिनिमम चाहिए ना बच्चे. एक तरीका तो ये है कि आप डिफरेंट x लेते हुए सिंप्लीफाई करके देख लो. दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों में मिनिमम कौन है पता लगाने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आएगा. तो जिन x के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा उनके लिए मिनिमम ये होगा, राइट. और जब ये लेसर देन और इक्वल टू 0 आएगा उनके लिए मिनिमम ये होगा. तो सॉल्व कर लेते हैं. x व कैंसिल 1. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1. इसका मतलब x कैन गो अप टू 2. 2 इंक्लूडेड नहीं है, इट कैन गो अप टू 2. ठीक, और जो हमारा इंटरवल है वो 2 इंक्लूडेड है, मतलब 2 को बस आपको यहाँ से सेपरेट करना होगा. अब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं टू बी 3x when x is less than 0 एंड मिनिमम क्या आ गया, बिकॉज x लेस देन 2 के लिए this is greater than or equal to 0, so this is lesser than or equal to this, so minimum of this 2 is x plus 2 greatest integer of x. कब होगा ये, जब x एंड एग्जैक्टली एट 2 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. ठीक, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ही हम देख लेते हैं. 1 प्लस 2 प्लस 2 दिस इज 5. अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6. तो ये हुआ 5 एट x इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए भी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम लिख लेते हैं ओवर. अब डिसकॉन्टिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे हमें वर्क करना है. तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कांस्टेंट भी, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है. ये अपने इंटरवल में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस पूरे इंटरवल में एक इंटीजर आता है दैट इज 1, और 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा. तो ये जो 1 है ये तो दोनों के साथ काउंट हो जाएगा. अब हम आते हैं जहाँ पे ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है. तो 0 पे ये वैल्यू हमें 0 देता है, 0 प्लस के लिए ये 0 0, तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी तो है, और 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम चेक करते चलते हैं. बच्चा 0 प्लस के लिए ये आ जाता है आज 0, ये रह जाएगा टू बी x, मतलब 0 से 1 के बीच में. ठीक है, तो ये x, इसका डेरिवेटिव 3 है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो शार्प कॉर्नर तो क्रिएट हो गई. तो उस जगह पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो क्रिएट होगा. तो अगर हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हमें मिला x इज 1 एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी उस जगह पे क्रिएट हो रहा है, और 0 पे कॉन्टिन्यूटी तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल है. अब इस जगह पे आ जाते हैं 2 माइनस के लिए ये हमें देगा 1, तो ये हुआ 2, ये है 2, दिस इज 4, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, और डिसकॉन्टिन्यूटी है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप ही क्रिएट हो गई. तो ये है 2. तो इट सेज अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा इज 2, बीटा इज 3, आंसर इज 5. ठीक है बेटा, सो दैट्स इट. इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है. हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है अभी जो हमने किया ना वो NCR वाला क्वेश्चन, अगर उसका एक्सपोजर नहीं है तो कम्प्लीटली नया लगेगा, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर.